नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2023। आज सुबह से ही सबकी नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर लगी हुई थी। उन्होंने बजट पेश किया। आज ये तय हो गया कि सरकार साल भर कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथे चरण की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। सीतारमण जी ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए। लेकिन वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब 7 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव सरकार की ओर से 2014 में किया गया था। वहीं 2020 के बजट में केंद्र सरकार की ओर से नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। नया टैक्स सिस्टम क्या है, जो बदलाव किया गया है उसका क्या असर होगा, आम आदमी को क्या लाभ होगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यह विकास करने वाला बजट है। आज हम कोरोना से पहली वाली आर्थिक गतिविधियों पर से बाहर आ गए हैं। इसमें सरकार की नीतियां और बजट ने खासा सहयोग किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Hello and welcome viewers. You are watching our continued coverage of the budget, and joining us is a very special guest, Housing and Urban Affairs Minister and Petroleum Minister, Mr. Hardeep Singh Puri. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. A big day for you, particularly 79,000 crore for housing. This is certainly a huge boost for the housing sector. Madam, whilst I rejoice at the figure for of 79,000 crore provisioning, please, it's both for rural and urban. And a large segment of this is for the rural sector, but I'm very happy about it because, you know, whether it's rural or urban, Pradhan Mantri Awas Yojana means building more modern housing with a kitchen, a toilet, you'll have then a gas cylinder, you'll have all the modern facilities. And then in the process of building that, you're consuming cement, you're consuming steel, and that results in overall growth of the economy. So I'm delighted at that. But as I said, let the entire credit not go to the urban ministry. I think the rural development ministry, which deals with rural housing, will have to also, take pleasure from this. So you've always been talking about the kind of pressure that our urban areas have. Now that we have the Urban Infrastructure Development Fund, what kind of impact or what kind of projects do we foresee? Madam, I would say that the realization that we are a rapidly urbanizing country, that realization has been around since the Honorable Prime Minister assumed responsibility. Earlier governments tended to neglect the urban space because for a variety of reasons, bulk of India lived in rural areas, and maybe the need to develop the rural economy, which is important in and of itself,
was perhaps given more prominence. But the Honorable Prime Minister in 2014, after assuming responsibility, acknowledged the importance of the urban space, and he decided to devote attention and resources. And a point which I am very liable to repeat is that the total urban spend between 2004 and 14 was 1,57,000 crores. Today, it is 18 lakh crores. So you have a massive exponential increase in the urban spend. This 10,000 crores which is coming in for tier 2 and 3 cities, again, is very welcome. But I suspect it's only a seed money because land is a state subject, the states will contribute, private sector will come in, and then if land is a state subject, if you start something in the urban space, you will say out of this fund, so much will come. I mean, there are many other things. For instance, let me give you a small example. A lot of the housing projects which were started for some reason or the other during the time of economic difficulty, they remain unfilled, incomplete. So we started a fund called the Swami Fund, which was initially 25,000 crores, which helped in building that. So there's more money coming in, so project gets completed. So all these additions, net additions, are most welcome. And for somebody who has the privilege of looking at the urban space in a holistic manner, I think these are very good decisions. All right, let's also shift focus to the Petroleum Ministry, sir. The petroleum subsidy has gone up. Now, individually, I may not see any impact, but what does the budget mean for our strategic reserves, for retrofitting our refineries, and so on? Dekhiye, petroleum sector is or the oil energy sector is a very large sector. The budget, you can legitimately ask why is money being given to the petroleum sector, petroleum ministry? Partly because that petroleum ministry is required, which is dealing with fossil fuels, it is required to make the transition to green energy. So you will need capital expenditure on green energy. Now we have got a very ambitious project on green hydrogen in mission mode, which the Honorable Prime Minister announced in August of 2021. Today, we have a cabinet decision which announced that 19,700 crores would be available for under the PLI scheme for electrolyzers. So this 35,000 crores I look at as an additionality. I mean, Strategic Petroleum Reserve has been there. Out of this 35,000 crores, 5,000 goes to the Strategic Reserve towards that. Another 30,000 goes for capital expenditure and the green transitioning. So I think it's all very welcome. It all fits in. Now, I've been around long enough to realize you would say, mera itna yahan kharch hua, ye pura. It's not how it is. You lose some money somewhere, you make a lot of money elsewhere. Today, the fact of the matter is that the OMCs have evened out insofar as petrol is concerned. Yes. There is still some under-recovery on diesel, but I'm sure with this other global situation improving, one can never be sure, but I'm confident that they will, sooner rather than later, be able to. I've already seen the results of some of our companies. Last quarter result, yes, they're looking better. All right, sir. Thank you so much for talking to us. Thank you. Camera person Yogesh and Kriti Mishra for Sunset Television. जाहिर तौर पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उस लिहाज से भी जो बजट है वो खासा महत्वपूर्ण है, और रेलवे की बात की जाए तो उस लिहाज से भी सरकार का खासा जोर रेलवे के विकास पर, रेलवे स्टेशनों के विकास पर रहा है। और इसलिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भी कि अमृत भारत स्कीम में बड़े स्टेशन सहित कुल 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे को अब तक के सबसे बड़े बजट के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह एक बड़ा बदलाव है और ये यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की सनसेट टीवी के संवाददाता कृति मिश्रा ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Hello and welcome viewers. You're watching our continued coverage on the budget, and joining us right now is a very special guest, Railways.
Electronics, IT and Communications Minister, Mr. Ashwini Vaishnaw. Sir, welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. Before I talk about specifics and specifically about your ministry, let's talk about the overall budget, the big takeaways for you. मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस विजनरी बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। विश्व की जैसी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह इमर्ज हुआ है और आज का जो बजट है, इस बजट के परिणाम स्वरूप भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया है और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। जिस तरह की जनसाधारण की आकांक्षाएं और देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को जो कम करना है, उसमें रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही अत्यावश्यक था। 2,40,000 करोड़ का रेलवे के लिए एलोकेशन हुआ है। आज से 10 साल पहले ये 22,000, 23,000, 35,000 के आसपास होता था। तो बहुत सिग्निफिकेंट जंप है। 40,000 के आसपास होता था, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट जंप है अब ये। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? सबसे पहले पैसेंजर एमिनिटीज़, पैसेंजर्स के लिए स्टेशन, ट्रेन और सेफ्टी, ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्टेशंस में अमृत भारत स्टेशन में स्कीम में करीब 1275 स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये जो एलोकेशन हुआ उससे बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वो भी है इसमें। मीडियम साइज़ के स्टेशन है जैसे जोधपुर है, पुरी है, भुवनेश्वर है, और जो छोटे स्टेशंस होते हैं, बहुत सारे स्टेशंस हैं, उन सब स्टेशंस को भी इसमें डेवलप किया जाएगा। वंदे भारत का आपने देखा ही किस तरह से पैसेंजर्स ने इसको बहुत ही सराहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को बहुत ही इसमें सबने सराहा है कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन हिंदुस्तान में सबको मिली है। अब वंदे भारत ट्रेन का सीरियल प्रोडक्शन चालू हो गया है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है। अब हर 7-8 दिन के अंदर एक नई ट्रेन निकल रही है, तो इसको और रैंप अप किया जाएगा। 2 और नई जगह वंदे भारत का प्रोडक्शन चालू होगा, सोनीपत में और लातूर में। अभी चेन्नई में हो रहा है, सोनीपत और लातूर में भी इसका प्रोडक्शन जल्दी चालू होगा और उसके बाद में रायबरेली में भी इसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो अब इस तरह से रैंप अप करेंगे जिससे कि बहुत जल्दी हफ्ते में 3 या 4 गाड़ियाँ मिलती जाए। तो उस तरीके से रैंप अप इसको करना है प्रोडक्शन को। और देश भर में वंदे भारत से एक जो बहुत पॉजिटिविटी आई है, उसका पब्लिक जनसाधारण को, पैसेंजर्स को उसका लाभ मिलना चाहिए। कवच में पिछले बजट में 3,000 किलोमीटर का टारगेट दिया गया था, 4,000 किलोमीटर का काम टेकअप ऑलरेडी हो गया है। इस साल 5,000 किलोमीटर और टेकअप करेंगे। बहुत बड़ा इसमें डेवलपमेंट एक हो रहा है कि दुनिया भर अभी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जाता है, UHF फ्रीक्वेंसी पे दुनिया भर में सिस्टम है। हम लोगों ने, रेलवे ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये संकल्प लिया है कि कवच हमारा वर्ल्ड में बेस्ट बने। उसके लिए ऑलरेडी कवच को 5G पे माइग्रेट करने का काम चालू हो गया है, तो वो डेवलपमेंट भी इस साल कंप्लीट होगा। इस साल आपने बजट में देखा ग्रीन ग्रोथ पे बहुत एम्फेसिस दिया गया है, टूरिज़्म पे बहुत एम्फेसिस दिया गया है। ग्रीन ग्रोथ की इसी थीम में रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन का डेवलपमेंट होगा। इस साल के दिसंबर तक, 2023 के दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन रेडी होगी। फिर हेरिटेज जो सर्किट्स है वहाँ से आरंभ करेंगे, उन सब में हाइड्रोजन ट्रेन लगाएंगे। प्लस सोलर के मेगा पावर प्लांट्स का इस वर्ष में डेवलपमेंट होगा, जिससे कि 2030 तक नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो। साथ ही साथ टूरिज़्म को जो थीम दिया गया इस बजट में, उसी कड़ी में बहुत ही अच्छे जो सक्सेसफुल हमारा भारत गौरव सर्किट है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपना विजन दिया था कि भारत के कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए रेलवे एक बड़ा माध्यम बने, भारत की संस्कृति को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने। तो उसी कड़ी में रामायण एक्सप्रेस, जगन्नाथ सर्किट, शिरडी साईं बाबा की सर्किट, तो वो सब चले हैं। बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिला है। काशी विश्वनाथ सर्किट, इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब इस तरह की और कई नई ट्रेन्स चलाई जाएगी। गुरु कृपा सर्किट है, इस तरह से बहुत सारे सर्किट्स है। अंबेडकर जी की जो 5 महातीर्थ हैं, उन सबको कवर करने वाला एक सर्किट है। इस तरह के कई सर्किट बने हैं, उनको एक एक करके इस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कैपिटल आउटले की बात की, 2.4 लाख करोड़, 9 times if we compare it from 2013-14.
सर, इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आप कितना देखते हैं, और पर्टिकुलरली मैं जॉब क्रिएशन के बारे में समझना चाहूँगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है जी। अगर हम एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर लेते हैं तो वो करीब 3.5 आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे लोगों की स्टडीज़ हैं। रेलवे का मल्टीप्लायर करीब करीब 5 है, यानी 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उसका 5 गुना यानी 12 लाख करोड़ का, 12,50,000 करोड़ का इसमें इम्पैक्ट आता है। यानी रोजगार जो इससे जनरेट होता है वो रोजगार करीब करीब अंदाज़न आएगा करीब करीब 50 लाख के आसपास रोजगार इससे जनरेट होगा। मैसिव इससे रोजगार जनरेट होगा। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, उनका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। साथ ही साथ रेलवे में अपने आप में भी 1,45,000 एम्प्लॉयमेंट का काम चल रहा है। बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है और आप विश्वास करोगे 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स। एंड टच वुड, पीएम साहब ने जिस तरह का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका काम करने का बनाया है, इस ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत अच्छी मिसाल है। कहीं कोई पेपर लीक नहीं, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं, एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। ऑलरेडी लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 की कंप्लीट हो चुका है, उनको एम्पैनलमेंट हो चुका है उनका कंप्लीट। लेवल 2 और लेवल 1 का बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। तो 1,45,000 के आसपास रोजगार इस बार रेलवे में अकेले में डायरेक्ट रेलवे के अंदर गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से दिया जा रहा है। और पूरी रेल परिवार अगर हम देखें तो इसमें बहुत मैसिव रोजगार जनरेट हो रहा है। बिल्कुल सर, थोड़ा फोकस आईटी मिनिस्ट्री पर भी करना चाहूँगी। लगातार सरकार का डिजिटल एडवांसमेंट पर बहुत ज़्यादा एक फोकस रहा है। इस बार के बजट पे भी देखें तो सबसे पहले मैं पिकअप करना चाहूँगी, हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए है, जो बात की गई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, उसमें आप किस तरह का आगे रोड मैप देखते हैं अपने मंत्रालय की तरफ से? प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के पावर को सारी दुनिया ने स्वीकारा है। अभी डेवोस में भी हर कोई डिजिटल इंडिया की बात कर रहा था और लोग आश्चर्यचकित है कि भारत ने किस तरह से इतनी बड़ी डिजिटल कैपेबिलिटी डेवलप की है। ये जो मॉडल बना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिसमें गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना के दे और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ सके, इंस्टीट्यूशंस जुड़े, स्टार्टअप्स जुड़े, स्टूडेंट्स जुड़े, किसान जुड़े, हर कोई जुड़े। ये एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बना है, इसी मॉडल को पेमेंट में अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, हेल्थ केयर में अच्छा सक्सेसफुल हुआ है ये। अब इसको एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में, कई सेक्टर्स में लगाया जाएगा। तो एग्रीकल्चर में बहुत विस्तृत में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में अपने भाषण में इसका उदाहरण दिया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का संकल्प दिया था देश को, तब लोग क्या क्या बोलते थे, लेकिन आज उनके सामने एक मिसाल है। हिंदुस्तान मोबाइल फ़ोन का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन के निकला है और हिंदुस्तान में जो मोबाइल फ़ोन उपयोग में आते हैं 99% भारत में बनते हैं, 99%। तो आज बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण उसके लिए स्टेप लिया गया है, कंपोनेंट इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। मुझे विश्वास है आज जो $9 बिलियन का एक्सपोर्ट मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन्स का है, वो आज के इस बजट के अनाउंसमेंट के कारण, बजट में पॉलिसी चेंज करने से कम ये अगले 1.5 से 2 वर्षों के अंदर अंदर 9 बिलियन से 17-18 बिलियन तक पहुंचेगा। इतना मैसिव रोजगार, एक एक फैक्ट्री में 60-60 हज़ार लोग, इस तरह का बहुत मैसिव है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये आप अगर देखोगे, ये एक टर्निंग ईयर है, टर्निंग पॉइंट है, एक जिसको हम वाटरशेड इवेंट बोलते हैं। चैट जीपीटी एआई का जो सिस्टम है, तो भारत ने, आप तो जानती हैं, भारत एआई में 1 नंबर पे माना जाता है टैलेंट कंसंट्रेशन में विश्व भर में। और अभी ग्लोबल जो एआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लीडरशिप भी भारत को दी गई है। तो टोक्यो में बहुत जल्दी उसकी मीटिंग्स आरंभ होने वाली है। तो 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एआई के डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि एआई का उपयोग हम अपने दैनंदिन जीवन में किस तरह से कर सकें, सोसाइटी में क्या उसके बेनिफिट्स मिल सकें, हमारे एक जो ईज़ ऑफ लिविंग है वो कैसे हो सके, उस सब पे ध्यान दिया जाएगा। और 5G साथ ही साथ 5G डिजिटल, ये सब के सब एक साथ मिले हुए हैं। तो 5G के लिए रोल आउट तो आपने जाना ही है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। 1 अक्टूबर को पीएम साहब ने लॉन्च किया था।
31 मार्च तक टारगेट हमने लिया था कि 200 शहरों को जी। कंप्लीट करेंगे। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा, हम फरवरी के फर्स्ट वीक में हैं, ऑलरेडी 200 से अधिक शहर कवर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रोल आउट है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आज बजट में 5G की 100 लैब्स क्रिएट करने का टारगेट दिया गया। ये हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत को एक जो टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाने का सपना है, उस सपने के प्रति एक बहुत बड़ा स्टेप है। सर, आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगी, एज अ सिटीजन जो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की बात की गई है, एज अ सिटीजन वो हमारे लिए क्या है? नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बेसिकली नॉन पर्सनल डेटा के लिए, जैसे वेदर का डेटा है, जैसे ट्रैफिक का डेटा है, जैसे क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका डेटा है, तो ये नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड है। नॉन पर्सनल डेटा बहुत सारा गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में लंबे टाइम से कलेक्ट होता आया है। उस डेटा को यूज़ करके कैसे हम सिटीजन्स तक अच्छी सर्विसेज पहुंचाएं। जैसे मान लो किसानों तक करेक्ट वेदर की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो क्या हम हमारे पास वेदर का जो पुराना डेटा है 50-60 वर्षों का, क्या उस डेटा को लेके ऐसे अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं जिन मॉडल्स में AI हो, ML यूज़ हो, वो सब यूज़ करके कैसे हम किसानों तक एकदम रियल टाइम करेक्ट वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है, उसके लिए करेक्ट स्ट्रैटेजी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को मिल सके। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो नॉन पर्सनल डेटा उसको यूज़ करने के लिए। सर, लास्टली बजट एंड G20, द राइट टाइम? एब्सोल्युटली राइट टाइम। देखिए, हिंदुस्तान आज दुनिया का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। प्रधानमंत्री जी ने जो पॉलिसीज़ रखी हैं, उन पॉलिसीज़ को जिस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में जैसी भी परिस्थितियां हों, हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट बना है और हिंदुस्तान अब वर्ल्ड का, विश्व का ग्रोथ इंजन बन के उभर रहा है। Absolutely, sir. On that positive note, thank you so much for talking to us. नमस्ते। The camera person Yogesh and Kriti Mishra for Sunset Television. जाहिर तौर पर इनकम टैक्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बजट है आज का और इसके अलग अलग पहलू हैं। किस वर्ग को कितना लाभ हुआ है, क्या असर इसका होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे आर्थिक मामलों के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार बिजनेस वर्ल्ड से प्रांजल शर्मा जी से। प्रांजल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत सुनील जी मैं आपसे करूंगा। लंबे समय से जिस चीज की प्रतीक्षा थी, इनकम टैक्स में एक बदलाव होगा, और वो बदलाव हुआ और एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आप इस बदलाव को कैसे देखती हैं? क्या असर इसका होगा? कितना लाभ किसको होगा? जरा समझाइए इसको। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। बड़ा कंप्रिहेंसिव बजट है और जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अमृतकाल का जो पहला बजट है ये अगले 25 सालों में, और जहां हमें जाना है। जहां तक सवाल इनकम टैक्स का है, आपको ध्यान होगा माननीय वित्त मंत्री जी 2020 के बजट में नई स्कीम लेके आई थी। 2 रिजीम कर दिए थे, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। नए रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस नहीं मिलती थी, और ओल्ड रिजीम में जैसे आप ATC की डिडक्शंस, ATD की डिडक्शंस, मेडिक्लेम की है, या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, या एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है, वो सारी छुट्टियाँ आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन जब ये 2020 में स्कीम आई तो हमने उस समय भी कहा था कि उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, और यही कारण है कि अगर इस हम असेसमेंट की बात करें 22-23 में, तो टोटल रिटर्न फाइल हुई है 7.53 करोड़ जी, और नए रिजीम को चुनने वाले 5 लाख से भी कम है। तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी तक वो स्कीम नहीं पहुंची थी। आज जो प्रयास किया है वो इतना बड़ा प्रयास किया है कि अब ये स्कीम बड़ी अट्रैक्टिव बना दी गई है। अट्रैक्टिव का मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 3 लाख तक कह दिया कि कोई टैक्स नहीं है, पर 7 लाख का जो टैक्स का है, ये 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसका ये मतलब नहीं कि 7 लाख तक की इनकम पूरी तरह एग्जेम्प्ट होगी। इस बात को ध्यान से रखने वाली बात है। 3 लाख तक के बाद में आपको एक 87A की रिबेट जो पुराने रिजीम में 5 लाख तक मिलती थी, हमारे यहाँ पर अभी भी क्या है कि 2.5 लाख का स्लैब है, लेकिन 5 लाख से की इनकम अगर आपकी टैक्सेबल है तो सारी डिडक्शंस के बाद में
तो आपको 12,500 रुपये टैक्स बनता है और धारा 87A में वो छूट मिल जाती है 12,500 रुपये की। तो अब क्या किया इन्होंने, अब ये कहा कि पुराने रिजीम में तो 12,500 की छूट मिलेगी आपको, नए रिजीम में उस रिजीम को बढ़ा दिया और वो 32,500 कर दी है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हो गया कि अब आपको 7 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स बनेगा वो एज इट इज रिबेट मिल जाएगी। तो एक तो जैसे ही आप 7 लाख क्रॉस करेंगे जी, जैसे ही आप 7 लाख क्रॉस करेंगे आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जी, बात समझ रहे हो? जी। जो पुराना भी बात थी, ताकि लोगों को, बड़े लोगों को फायदा ना मिले। एक जी। तो ये फायदा है। दूसरा, लेकिन आज भी अगर हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं, और अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है जिसमें आपको 2 लाख की छूट मिलती है, आप ATCC डी और NPS और LIC की जिसमें आपको 2 लाख की छूट मिलती है, मेडिक्लेम जिसमें 25,000 जमा 50,000 की छूट आपको मिलती है पेरेंट्स के लिए, हम ये 4.5 लाख की छूट अगर मान लें, कोई क्लेम कर रहा है, कोई ले रहा है, तब ये स्कीम एट पार है। बल्कि 10 लाख की अगर इनकम आपकी है, मनोज जी, तो बड़े मजे की बात है कि 10 लाख की इनकम है तो आपको पुराने रिजीम में फायदा होगा अगर आप 4.5 लाख की छूट क्लेम कर रहे हैं, नए रिजीम में फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको ये सोच के आपको स्कीम करनी पड़ेगी। और विशेषकर अगर आपको एजुकेशन लोन आपके पास है या ATEA का बेनिफिट आप ले रहे हैं तो हो सकता है ओल्ड रिजीम में आपको बेनिफिशियल हो। सुनील जी, बहुत क्योंकि आम आदमी से जुड़ा ये मसला है, वेतन भोगियों से जुड़ा ये मसला है, कारोबारियों से जुड़ा ये मसला है, छोटे कारोबारी भी हैं, मध्यम वर्ग के कारोबारी भी हैं, नई रिजीम और पुरानी रिजीम, इसमें थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे किसमें किसके लिए फायदेमंद ये हो सकता है? क्या करे एक आम दर्शक? पुरानी, जैसा आपने कहा, नई स्कीम को लोगों ने कम अपनाया, लेकिन बेनिफिट नई स्कीम में भी नई रिजीम में भी दिखने को मिल रहे हैं, और पुरानी रिजीम भी अगर टैक्स की दृष्टि से आदमी लेता है उसमें भी फायदा नजर आता है। तो इसमें कैसे आदमी चुने इसको? देखिए, अगर ओवरऑल देखेंगे तो जो बेनिफिट दिए हैं, जो स्लैब बढ़ाए हैं, 7 लाख तक कर दिया, उसके बाद में 3, 6, 9, 12 की जो स्लैब बढ़ाए हैं, नई स्कीम बड़ी अट्रैक्टिव हो गई है। मैंने आपको केवल एक कैविएट बताया है कि अगर आप सारी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक चार्ट देता हूं, मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है जी, तो नई रिजीम में आपको 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा कम से कम, उसमें तो कोई छूट ही नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने रिजीम में रहना चाहते हैं और आप 4.5 लाख की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं इंक्लूडिंग हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, तो आपका जो टैक्स है वो 22,500 हो जाएगा जी, तो वहां पे आपको बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपको नया रिजीम ही बेनिफिशियल होगा, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी, ये देखना पड़ेगा आय के हिसाब से। बहरहाल नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स और 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा। और 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो उनकी आय का महज 5% है। प्रांजल जी, अगर बात सामाजिक दृष्टि से की जाए, राजनीतिक दृष्टि से की जाए, तो ये जो बदलाव इनकम टैक्स का है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मायने है इसके, क्या संदेश है इसका? देखिए, कुछ सरलीकरण तो हुआ है, लेकिन ये सरलीकरण और भी होना है। देखिए, जो भी करदाता है उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? एक तो उसका कर का बोझ थोड़ा कम हो, और साथ साथ कर भरने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन मेरा बड़ा प्रश्न ये है, जो आप और सुनील जी भी बोल सकते हैं, कि जो 136 करोड़ लोगों के देश में केवल 8 करोड़ लोग कर देते हैं जी, इस पर अभी भी मुझे लगता है सरकार को बहुत कार्य करना बाकी है। जब आप इसको बढ़ाएंगे, अगर 8 करोड़ से मान लिया आप इसको 18 करोड़ कर दें या 20 करोड़ कर दें, तो जो करदाता है, हर करदाता पर बोझ उतना ही कम होगा। आप करों की दर उतनी कम भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को और ध्यान देना चाहिए, इसकी मुझे अभी थोड़ी कमी लग रही है। जी, अगर बात मैं पारिवारिक पेंशन भोगियों की करूं और वेतन भोगियों की, उसके लिए भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है, राहत दी है वित्त मंत्री जी ने, उसका क्या मायने है? उसे आप कैसे देखते हैं, उस पहलू को? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर आप नए रिजीम में जा रहे हैं और पेंशन भोगी हैं आप, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया गया। सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये दे दिया आपको, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे मैंने प्रांजल जी ने कहा, सरकार का जो मोटिव है वो है सरलीकरण, कंप्लायंस कम से कम हो, लोग आसान भाषा में समझ पाएँ, डॉक्यूमेंटेशन का बोझ ना हो।
इसीलिए सरकार इसको बाय डिफॉल्ट स्कीम ले आई है। अब पहले क्या होता था, पहले आपको चुनना पड़ता था नई स्कीम में जाने के लिए, नई रिजीम में जाने के लिए। अब क्या होगा, नया रिजीम बाय डिफॉल्ट होगा। अगर पुराना चुनना चाहते हैं तो आप चुनिए। मुझे क्या लगता है आज के बाद में, एक तो ये देखिए अगले साल इलेक्शन भी है जी, तो मिडिल क्लास को एक राहत देनी थी, और वो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत है। टैक्स आउट गो में ये बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट था जो 42.74 था उसको भी घटा के 39% किया, ये भी बड़ा वेलकम स्टेप है जी। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, उसको भी एक स्पेशल रेट दिया इंडस्ट्री की तरह 15% का। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये समाज के हर पहलू को छुआ है वित्त मंत्री जी ने। एमएसएमई को एक बड़ा रिलीफ दिया है कि एमएसएमई को अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री वाले, तो उनको आपको एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि एमएसएमई जो परेशान रहता था कि हमने माल सप्लाई कर दिया, हमको पेमेंट नहीं आ रही है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो अब वो एक तरह से काम करेगा, एक बूस्टर का काम करेगा कि एमएसएमई को सही टाइम पे वर्किंग कैपिटल की जो शॉर्टेज होती है वो नहीं होगी। स्टार्टअप के लिए बेनिफिट दे दिया, स्टार्टअप का जो पीरियड था खत्म हो रहा था उसको बढ़ा दिया। तो वित्त मंत्री जी ने अपने रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे मनोज जी, उसमें से हर पहलू को छुआ है जी। समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश इस बजट में की गई है ताकि सबको राहत मिले। एक मुद्दा और बड़ा है जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर से जुड़ी जो उनकी चौथी घोषणा थी उसमें उच्चतम कर दर के संबंध में है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे देश में 42.74% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है कर दरों में। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उच्चतम दर का सवाल भी बार बार उठता है, इसके क्या मायने हैं आर्थिक दृष्टि से? देखिए, नो डाउट 42.74 था। होता क्या था कि 5 करोड़ से जैसे ही आप जाते हैं, इनकम क्रॉस करती है आपकी, तो आपका जो सरचार्ज है वो बढ़ जाता था 37% जी। हमारे पास 4 सरचार्ज की दरें हैं, 10, 15, 25 और 37। तो ये कई बार हमने भी रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये बहुत ज़्यादा ना डिसएडवांटेज है। जो हाई इनकम ब्रैकेट के 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं, आप समझिए 42.74 तो आपने उनसे ले लिया जी, और उसके बाद में उनको बाकी बचता है। तो इसलिए शायद ये स्टेप उठाया गया है कि आप इसको 25% पे कैप कर दिया, तो मैक्सिमम रेट हो गया 39%। एक अच्छा काम पहले भी किया था लास्ट ईयर के बजट में। आपको ध्यान होगा, डिविडेंड से होने वाली इनकम और कैपिटल गेन से होने वाली इनकम का सरचार्ज 15% पे ही कैप कर दिया था। तो वहाँ पे एमएमआर का रेट वैसे ही कम है, वहाँ 35% है, तो अब एमएमआर 39 होगा। और ये जो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, जो यहाँ पे पैसा लगाते हैं, उनको इनकम मिलती है, उनको डिविडेंड मिलता है, बाकी वो जैसे प्रॉफिट्स लेते हैं या सैलरी लेते हैं डायरेक्टर्स, उनके लिए एक वेलकम स्टेप है और ये अच्छा एक मूव हम कह सकते हैं। जी। प्रांजल जी, अगर इस बजट की मैं बात करूं तो खास तौर से जो सीनियर सिटीजन हैं या महिलाएं हैं, अगर महिला सशक्तिकरण की बात मैं करूं, उस दृष्टि से भी खासी राहत देने की कोशिश की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के सामने जो चुनौतियां आती हैं, रिटायरमेंट के बाद आती हैं या बढ़ती उम्र के साथ आती हैं, वो अपने में एक लंबे समय से उसके लिए भी आशा की जा रही थी कि सरकार कोई ना कोई राहत देगी। महिलाओं के संदर्भ में भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है इस बजट में, इस पे आपका क्या कहना है? हर बार सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो भी वर्ग ऐसे हैं जिन पर थोड़ी सी वो वल्नरेबल श्रेणी में हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। महिलाओं को हमेशा से कई दशकों से अगर आप एग्जेम्पशन रेट देखें, स्लैब देखें, उनको हमेशा थोड़ा उनके ऊपर कम बोझ रखा गया है और इस साल भी उन्होंने इसी तरह से उनको और फ़ायदा पहुंचाया है। जहाँ तक कि जो सीनियर सिटीज़न की बात है, वृद्ध श्रेणी में हैं, उनके लिए जो पेंशन स्कीम है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन उनको वो सुधार आगे बढ़ाना है। सरकार ने, वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि उनको हम और बेहतर करना चाहते हैं। अब देखना है कि इसका कार्यान्वित कैसे होता है। जी बिल्कुल। सेवानिवृत्ति के बाद एक आदमी कैसे अपनी आय को संभाल सकता है, बढ़ा सकता है, इनकम टैक्स की दृष्टि से उसे क्या लाभ हुआ, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन बजट को लेकर पर्यटन में क्या है, इस संबंध में बात की राज्य मंत्री श्रीपद नायक से हमारे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक। सर, बजट को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? ये बड़ा आकांक्षाओं वाला बजट था। जी। कितने नंबर देंगे इस बजट? डेफिनेटली 10 में से मैं 10 नंबर देता हूँ, क्योंकि जिस तरह के लोगों की आकांक्षा थी कि इस बजट ने, हमारे अर्थ मंत्री जी ने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी समूहों को, जो समूह
एक्सपेक्टेंट थे, जो चाहते थे, वो सब उसमें दिया है, ऐसा मुझे लगता है। युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, सब हो, समाज के सभी अंगों को बजट का सपोर्ट दे दिया है। जी सर, आपसे समझना चाहेंगे जो एक तरह से सप्त ऋषि की जो बात की कि 7 अपने जो क्षेत्र हैं वो बेहद खास इस बजट में रहे, तो ये ग्रीन पावर और बाकी चीज़ें आप कैसे इसे देखते हैं कि ये सप्त ऋषि का जो मॉडल है वो कैसा है? ये तो यही है कि आज आप देखते हैं कि किस तरह से दुनिया जूझ रही है एनवायरनमेंट के खातिर, और भारत ने पहल की है उसके अंदर कि भारत सबसे इस समस्या को हल करने के भारत सबसे आगे बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ जाए सभी लोग भारत के और लीडरशिप के लिए देख रहे हैं, और भारत अपनी अच्छी तरह से भूमिका अब बजा रहा है, और इसीलिए इसको किस तरह से अपने देश में हम पहले करेंगे और दूसरे को बाद में बताएंगे, यही तो हमारी पॉलिसी है, और इसको ये सब करने के लिए बजट की व्यवस्था की है। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे पर्यटन को लेकर, खास तौर पर क्योंकि पर्यटन से आपके पास जिम्मेदारी भी है पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर। आप मुझे ये बताइए कि जो 50 लोकेशंस की बात हुई, पर्यटन को बूस्ट करने की बात हुई, ये किस तरीके से जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें मददगार साबित हो? जब जहाँ जहाँ भगवान की कृपा से हिंदुस्तान में जो डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिए है कंपेयर टू द बाकी जो नेशंस है ना, तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो उनको वहाँ व्यवस्था खड़ा करना ये टूरिज्म का काम है। और राज्य सरकार के सहयोग से हम चाहते हैं कि हमारी जो स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम हो या प्रसाद स्कीम हो या जो हमारे आइकॉनिक जो साइट्स है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जिम्मेदारी हमारी है, और वो हम पूरी तरह से निभाएं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे देंगे तो तभी तो फॉरेन टूरिस्ट या देशी टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट वहाँ जाएंगे। ये अपना काम हम करते हैं। सर, एक देखो अपना देश करके जो इनिशिएटिव की बात हुई, क्या जो अभी मौजूदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उन्हीं को लेकर आपका मंत्रालय बढ़ रहा है, या फिर कुछ ऐसे नए हम ढूंढ रहे हैं? अभी तो है ही है, नए डेस्टिनेशन कैसे डेवलप करना, ये भी हमारे सामने जो काम है ना वो हम कर रहे हैं। हम कुछ देखने के लिए फॉरेन में जाते हैं, कहीं स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ही हमारे देश में कश्मीर के रूप में, श्रीनगर के रूप में हमारे यहाँ खड़ा है। हम कभी वहाँ जाते नहीं, गए नहीं, तो हमें ये अपील, प्रधानमंत्री की जो अपील है कि देखो अपना देश तो यही है, आप जाइए और 5 लोगों को वहाँ जाने के बाद भेज दिए, ताकि जो डोमेस्टिक टूरिज़्म हो वो बढ़ेगा, और वहाँ के जो व्यापारी है, वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है, उनको सभी को अपनी अपनी आय की सुधार करने में निश्चित तौर से मदद हो जाएगी। ये उनके पीछे मतलब है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक का कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो नए इनिशिएटिव हैं उससे इस क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। कैमरामैन ब्रज सुंदर और साथी कौशल के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी। देश की अर्थव्यवस्था को लंबे अरसे तक बल देने वाला एक फाउंडेशन क्रिएट करने वाला बजट आज माननीय निर्मला जी ने पेश किया है। एक ऐसा बजट जो लगभग हर वर्ग की चिंता करता है, एक ऐसा बजट जो अगर मेरे क्षेत्र देखें तो वस्त्र विभाग हो या इंडस्ट्री हो, आयात निर्यात हो, उस पर भी बहुत गहराई से ध्यान देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराता है कि हम सभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे पाए। और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, डिफेंस में रिकॉर्ड बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गत 4 वर्षों में 3 गुना कर दी गई है, और रेलवे का तो बताया कि पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 9 गुना कैपेक्स के लिए प्रावधान किया गया है। तो हर तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट दिया है जो भारत को बहुत लंबे अरसे की छलांग लगाने के लिए पहला कदम के रूप में देखा जा सके। अमृत काल का विजन को पूर्ण करने की दिशा का बजट मानता हूं। हेल्थ मिनिस्ट्री को इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, देश में जो आईसीएमआर की लैब है और हेल्थ सेक्टर में रिसर्च करने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट की लैब ओपन की जाएगी।
ताकि हमारे यंग, हमारे युवा रिसर्चर वो इन लैब का उपयोग करके हमारे एमएसएमई को अपनी कोई रिक्वायरमेंट के लिए रिसर्च करना है तो उसको भी फायदा होगा। देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो उस वक्त देश सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो। हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल एक बहुत बड़ा डिसीज़ है और इस बजट में अनाउंसमेंट किया है कि सिकल सेल नाबूदी के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 2046 तक 2047 तक देश में से सिकल सेल को नाबूद किया जाएगा। 40 इयर्स से बिलो 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा ताकि देश को सिकल सेल मुक्त किया जाए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से बहुत सारी घोषणा हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद चिराग पासवान जी हैं। सर, इस बजट को अगर मैं आपके नज़रिए से देखूं तो किस तरह का बजट आप देखते हैं? ये मुझे लगता है मौजूदा परिस्थिति में जहां देश की ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजरी है, ऐसे में ये पूर्णतः एक समावेशी बजट है जहां पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर पर हाशिए पर रह रहे लोगों का जहां इसमें ध्यान रखा गया है तो वहीं मिडिल क्लास जो एक बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में करता है उनका भी इसमें ध्यान रखा गया है। पर्सनल इनकम टैक्स में जिस तरीके से रिबेट को बढ़ाया गया, 5 लाख से लेकर 7 लाख उसको किया गया, उसके बाद भी जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी रियायतें ऐसी दी गई हैं कि आपकी जेब में यकीनन ज़्यादा पैसा बचेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, लगभग 10% से उसकी वृद्धि की गई है। जीडीपी का 3.3% हिस्सा उसमें दिया जाएगा, उससे यकीनन निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं हमारे देश में। एमएसएमई जो रोज़गार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, उसकी और सशक्त हैंड होल्डिंग करने का इसमें घोषणा की गई है। बेघरों के लिए आवास बढ़ाकर देने की लगभग 66% उसमें वृद्धि की गई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक बहुत वेल बैलेंस्ड, जहां पर हाशिए पर रह रहे लोगों का भी ध्यान रखा गया है तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ती रहे इसका भी ध्यान रखा गया है। सर, विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी वर्ष है इसलिए लोक लुभावन वादों के साथ ये बजट लाया गया है। क्या आप विपक्ष की इन बातों से सहमत हैं? लोक लुभावन वादे करने होते तो मुझे लगता है और बहुत सारी पॉपुलर घोषणाएं की जाती। मोदी सरकार कभी जानी नहीं जाती इन सब बातों के लिए। उन्होंने हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की नींव को मजबूत करने की सोच के साथ बजट लाने का उन्होंने काम किया और मुझे लगता है उसी कड़ी में ये आज का भी बजट है। सर, अगर मैं अंकों में बात करूं तो 10 में से आप कितने अंक इसको देना चाहेंगे? जैसा मैंने बोला, कोरोना काल से हम लोग निकले हैं, उसके बाद एक ऐसा बजट पेश करना जहां पे आपने रिलैक्सेशंस भी दिए हैं, अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करने का काम किया, 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सर। तो ये थे चिराग पासवान जिनका साफ तौर पर मानना है कि मोदी सरकार का ये बजट काफ़ी दूरगामी बजट है और आने वाले भविष्य को जो भारत का एक रोड मैप है उसको मजबूत करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जाहिर तौर पर अलग अलग प्रतिक्रियां आई हैं बजट को लेकर और बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐतिहासिक बताया है। गांव गरीब किसान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा है। साथ ही जो इनकम टैक्स में बदलाव हुआ है उसे भी एक बड़ा बदलाव की संख्या दी गई है। लेकिन एक अगर बड़ी बात की जाए इनकम टैक्स के हिसाब से तो गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर भी छूट का ऐलान किया गया है। क्या है इसके माने? क्योंकि गैर सरकारी जो वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं सेवानिवृत्ति के बाद उनके सामने भी कई सवाल खड़े होते हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं सुनील जी? क्योंकि ये सीधे सीधे मुद्दा गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों से जुड़ा है। बड़ा ही आश्चर्यजनक और बड़ा बोल्ड स्टेप है और लिमिट भी कितनी बढ़ाई है, 3 लाख से सीधा 25 लाख। जी देखिए, इन लीव एनकैशमेंट 3 लाख से ऊपर टैक्सेबल हो जाती थी अभी तक जो नियम था। तो जो वेतन भोगी कर्मचारी है वो कहते हैं साहब कि हम तो पहले ही पूरा टैक्स देते थे, अब रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ बख्श दो। तो आपको पता होगा ग्रेच्युटी 20 लाख तक हमारे एग्जेम्प्ट है, पीएफ से आप कोई पैसा निकालते हैं वो एग्जेम्प्ट है, आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से 60% तक विड्रॉ करते हैं वो एग्जेम्प्ट है, बाकी 40% आपको एन्युटी करनी होती थी। एक लीव एनकैशमेंट का ऐसा मुद्दा था, केवल 3 लाख की लिमिट थी और 3 लाख बड़ी कम लिमिट है आज के ज़माने में। पूरे कार्यकाल में लीव एनकैशमेंट का 3 लाख देना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं था। वित्त मंत्री जी ने इस पे ध्यान दिया और इसको 25 लाख किया है, बड़ा वेलकम स्टेप है जी। और एक एमएसएमई को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि एमएसएमई को लेकर भी तमाम राहत देने का ऐलान इसमें किया गया है।
खास तौर से अगर छोटे कारोबारियों की मैं बात करूं, मध्यम कारोबारियों की बात मैं करूं, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं राहत की दृष्टि बड़ा से? वेलकम स्टेप है। एक तो मैंने आपको बताया था कि सरकार ने क्या कहा है कि अगर एमएसएमई को आप टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। बड़ी कंपनियों को कहा है ये बात। तो एक तो आप उनको वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज नहीं होगी। दूसरा, जो छोटा व्यापारी है उसके लिए एक स्कीम है 44AD में, वहाँ पर 2 करोड़ तक आप केवल 6% अपनी इनकम दिखा दीजिए और आप सारे झंझटों से मुक्त होते हैं। कोई, जैसे प्रांजल ने कहा, कोई कंप्लायंस नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई बुक्स नहीं। उस लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। एक अच्छा वेल। और जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनको 50 लाख तक एक स्कीम थी 44ADA में प्रिजम्पटिव, जहाँ 50% को आपको इनकम दिखानी है, उसको भी बढ़ा के 75 लाख कर दिया। फिर मैंने कहा ना, ये बजट जो है समावेशी बजट है, हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ इसमें पा रहा है। जी बिल्कुल, समावेशी बजट है और इनकम टैक्स की दृष्टि से बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिला है। लेकिन प्रांजल जी, कुछ उम्मीद और भी की जा रही थी। मसलन अगर मैं बात करूं, कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। कुछ टैक्स के और भी ऐसे पहलू थे जिसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। कितना बेहतर है ये? इसमें आशंका ज़्यादा थी। आशंका ये थी कि कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाया जाएगा, कि इनहेरिटेंस टैक्स जो मान लिया उसको कहें तो जायदाद टैक्स, अगर आपको मिलता है पारिवारिक जायदाद, उस पर जो टैक्स है बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो एक तरह से राहत भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि काफ़ी एक अपेक्षा थी लोगों को, जो बड़े कारोबारियों, बड़े कंपनियां हैं, कि कैपिटल गेन्स टैक्स का जो पूरी व्यवस्था है उसको सरल किया जाएगा। इसमें यह है कि जैसे मान लिया किसी ने घर बेचा या कुछ सामान बेचा या कंपनी बेची, उससे जो उसको पैसा मिला, उस पर टैक्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग श्रेणियों पे अलग अलग स्लैब बने हुए हैं। तो कारोबारी और जो बड़े उद्योगपति, उनका ये मानना है कि इसको और सरल करने की आवश्यकता है और उनकी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हो जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि इन टैक्स दरों को अभी फिलहाल बढ़ाया नहीं गया है। जी सुनील जी, एक सवाल और भी आता है। सरकार ने बड़ी राहत दी है, जाहिर तौर पे उसका असर खजाने पे भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार को उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राहत आम आदमी को मिली, ये ठीक है, लेकिन खजाना तो देश का है ना, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 2 सालों से बड़ा यूनिक बात हो रही है और इस साल तो बड़ी यूनिक बात हुई है। आपको पता होगा, जो वित्त वर्ष 22-23 खत्म हो रहा है और रिवाइज एस्टीमेट जो आए हैं, जितना हमने टैक्स का कलेक्शन एस्टीमेट किया था वित्त मंत्री जी ने बजट में 2022 में, उससे लगभग 3-3.5 लाख करोड़ टैक्स फालतू आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स भी फालतू आया है और जीएसटी फालतू आया है। तो मैडम के पास में एक हेडरूम था, एक लीवरेज थी कि वो कुछ कर सकती है। और इसीलिए आपको पता होगा कि 2 लाख करोड़ की हमने 80 करोड़ राशन जो दे रहे हैं। तो एक तो अच्छी बात ये हो रही कि जो हम एस्टीमेट करते थे बजट में, उससे टैक्स फालतू आना, ये बहुत सकारात्मक एक सोच है हमारे देश के व्यापारियों की और टैक्स पेयर्स की, कि सरकार जितना उम्मीद करी उससे फालतू टैक्स आ रहा है। जी, तो एक हेडरूम मिल गया। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो मोमेंटम बन गया है, जैसे प्रांजल जी ने कहा, ये जो मोमेंटम बन गया ना इंडस्ट्री ग्रोथ का, तो इतना हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा। और इस सब की जो कॉस्ट मैडम ने बताई है वो 38,000 करोड़ है। मुझे लगता नहीं है जहां हम डायरेक्ट टैक्स 16 लाख करोड़ ले रहे हैं, इस बार हम 17-18 लाख करोड़ की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो बड़ा आसानी से मैनेज हो जाएगा। जाहिर तौर पे जीएसटी में जो नई कर व्यवस्था लागू की गई थी कुछ समय पहले, उसके परिणाम दिखने लगे हैं और रिकॉर्ड तोड़ जिस तरह से कलेक्शन हुआ है, उसका फायदा अब आम आदमी को भी सरकार दे रही है। यानी टैक्स सरकार के पास ईमानदारी के साथ आ रहा है, तो सरकार भी ईमानदारी के साथ इनकम टैक्स के रूप में आम आदमी को उसकी राहत प्रदान कर रही है, राहत दे रही है। ये उसका एक संदेश है आज के बजट का। और आखिरी बात प्रांजल जी आपसे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का सवाल है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 का ब्याज मिलेगा। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे सरकार का खासा जोर रहा है, एक नई योजना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। उनको किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए परिवार में, और जिस भी तरीके से उनकी आय को बढ़ाया जा सके, उनकी बचत को बढ़ाया जा सके, इसको हमको पूरी तरह से इसका स्वागत करना चाहिए। मेरा विचार है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जी, जाहिर तौर पर अगर इस बजट की बात की जाए तो ये बजट गांव, गरीब, किसान के लिए, साथ ही मध्यम वर्ग के लिए, यानी हर किसी के लिए इस बजट में सरकार ने कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था
कैसे मजबूत हो और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, इस दिशा में भी सरकार ने तमाम ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।